Good morning, class. In the last lecture, we have studied Gauss elimination method. So, in this method, we are finding the value of x, y, and z. So, we are eliminate x, y, and z value. We are eliminating the variable of x, y, and z. Then we can find the value of x, y, and z. So now in this lecture we are studied Jacobi's iteration method. So आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे Jacobi's iteration method. So let's start Jacobi's iteration method. So this method makes two assumptions. First is that the system of equation has a unique solution, that the coefficient of matrix A has a no zero on its main diagonal. If any of the diagonal enter A11, A22 up to ANN, so are 0, in force of 0, then row or column must be interchanged to obtain the coefficient matrix which has non-zero entries on the main diagram. मीन्स जो ये मेन डायग्राम मीन्स कौन सा डायगोनल कौन सा हो गया, सॉरी मेन डायगोनल, तो ये हो गया उसका डायगोनल मीन्स A1, A2 एंड सॉरी B2 एंड C3. सो फर्स्ट हम मीन्स हमको जो इक्वेशन दिया होगा सो उसको वर्टिकली हम लिखेंगे. मीन्स कंसिडर द सिस्टम ऑफ अ 3 इक्वेशन इन अ 3 वर्टिकल एज बिलो, वेरिएबल एज बिलो. सो equation number 1, equation number 2 and equation number 3. If the coefficient of the leading diagonal elements that A1, B2 and C3, here A1, B2 and C3 are large compared to the other coefficients, then the system of equation is written as a, so हम उसको सिस्टम को कैसे लिखेंगे, x, y और z. सो फर्स्ट को डायगोनल कौन सा था, that is A11. so x is equal to 1 divided by x1. जब हम x1 divided by x is equal to 1 divided by A1 लेंगे, so A1 की जगह हम पुट करेंगे D1. so D1 माइनस और अदर टर्म उसको माइनस करेगी. मीन्स ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा. मीन्स D1 माइनस B1y माइनस C1z. देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई B2 मीन्स क्या आएगा B2, क्योंकि वो सेकेंड डायगोनल है हियर. सो 1 डिवाइडेड बाई B2. सो ये दो टर्म प्लस है तो जाके माइनस होगा. मीन्स D2 माइनस A2x माइनस C2z. देन थर्ड इज मीन्स z, दैट इज C3. सो ये दो प्लस है उधर जाके माइनस होगा. सो 1 डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाई बाई D3 माइनस A3x माइनस B3y. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, K1 माइनस L1y M1z. सो K2 L2y M2z और K3 माइनस L3y माइनस M3z. सो ये इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6. Now applying initial approximation that x0, y0 and z0 is equal to 0, means this is a x0, y0 or z0 is equal to 0, we get from the above equation 4, 5 and 6. means these 4, 5 and 6 means these 4, 5 and 6. so उसमें हम वो वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मीन्स x y 0. so they gives x1 is equal to k1, y1 is equal to k2 and z1 is equal to k3. so we put here a y and z. so ये y और z 0 हो जाएगा. so k1, k2 and k3 मिलेगा. okay, then further substituting x, y and z in equation number 4, 5 and 6. so x, y, z हम 4, 5 and 6 में पुट करेंगे.
देन हम फाइंड करेंगे x2। सो सेम फॉर्मूला मीन्स ये फॉर्मूला हम फिर से रिपीट करेंगे हियर। सो क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, k1 माइनस L1 y1 माइनस M1 Z1 k2 माइनस L2 x1 माइनस M2 Z1 एंड k3 L3 x1 एंड y1। तो जो x1 y1 एंड Z1 है तो इधर हम पुट कर देंगे। Now this process is repeated till the difference between two consecutive iteration is negligible or the required accuracy is obtained. Now अभी हम ये मेथड यूज करके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो ये कौन सा मेथड है, जैकोबीज इंट्रेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट सम्स। सो फर्स्ट solve the following equation by Jacobi's method performing 3 iteration only these were equation 1 2 and 3। हमको 3 iteration चाहिए, मीन्स फर्स्ट iteration, सेकेंड iteration एंड थर्ड iteration। मीन्स हम पहले जैसे iteration फाइंड करते थे वैसे ही सेम। हियर गाइस 20x प्लस 5z माइनस 2z इज इक्वल टू 70, 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 0, then 2x minus 3y plus 20z is equal to 25। Let's start the solution। Rewrite the equation as below। जो हम फॉर्मूले में देखा वैसे ही फर्स्ट हम लिखेंगे, मीन्स कौन से मेथड में। तो हमारे पास ऐसा ये इक्वेशन है तो हम ये फॉर्मूले में लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/a, मीन्स ये डायगोनल वो 1/1 लेंगे। ओके, क्या हो जाएगा इधर, तो डायगोनल कैसा आ जाएगा, डायगोनल हो गया एक, ये डायगोनल हो गया ये और एक ये। सो 1/a, सो 1/a हियर, 1/b हियर एंड 1/c हियर। सो इधर क्या आएगा 70 माइनस ये टर्म देन 80। सो फिर से बताता हूँ। सो इधर क्या आ जाएगा 70 माइनस ये टर्म मीन्स माइनस वाई प्लस 2z देन 80, वो माइनस ये इज इक्वल टू 0। सो 80 इधर माइनस हो जाएगा, सो माइनस 80 और ये दो टर्म उधर जाएगी मीन्स माइनस 6x प्लस z देन यार 25 और ये दो टर्म उधर जाएगी मीन्स 3y माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये 2x है वो माइनस हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू 1/2 17y माइनस 2z देन 1/2 माइनस 18 माइनस 3x प्लस z 25 माइनस 2x प्लस 3y। सो इक्वेशन 1 2 and 3। नाउ फर्स्ट इंटरेक्शन, नाउ वी टेक अ फर्स्ट इंटरेक्शन अप्लाइंग initial approximation that is x0 y0 and z0 is equal to 0। so वही है, so initially approximation that is x y और z is equal to 0। so ये क्या हो गई, x y और z 0 हो गया मीन्स 70 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 20 और z क्या आया 25 डिवाइडेड बाई 20। सो हो गया हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन। So x1 is equal to 0.85, y1 is equal to minus 0.90 and z is equal to 1.25। So now second iteration, that is using above value x1 y1 and z1 in equation 1 2 and 3। so 1 2 and 3 में हम इक्वेशन x1 y1 and z1 यूज करेंगे। so जिधर x मीन्स जिधर x और x1 y और x y और z है उधर हम क्या पुट करेंगे y1 z1 एंड x1 पुट करेंगे। सो x2 इधर x2 का आएगा, फिर x2 मीन्स x की जगह x2 आएगा, फिर इधर y1 और z1 आ जाएगा। सो y1 क्या है माइनस 0.90 और z क्या है 1.25।
तो ये मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.02। तो ये होगा हमारा x2। नाउ हम y2 फाइंड करेंगे। y2 फाइंड करेंगे तो इक्वेशन 2 में इधर x1 और z1 आएगा। सो x1 की वैल्यू है 0.85 एंड z इज 1.25। सो ये हम एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करेंगे तो माइनस 0.965 आएगा। देन हम z2 का फाइंड करेंगे। सो z2 को इक्वेशन 3 में हम x1 एंड y1 पुट करेंगे। सो x1 एंड y1 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 0.85 एंड माइनस 0.90। तो वो सब सॉल्व करने के बाद 1.03 आंसर मिला। तो हमारे पास है x2 y2 एंड z3 की वैल्यू है, x1 y2 एंड z2 की वैल्यू है, वो अगेन हम इक्वेशन 1 2 एंड 3 में पुट करेंगे। मीन्स इधर फिर से क्या पुट करेंगे y2 z2 x2 z2 x2 एंड y2 पुट करेंगे तो हमको इधर क्या मिलेगा x3 y3 एंड z3 मिलेगा। दैट इज द थर्ड इंटरेक्शन, क्योंकि हमको 3 इंटरेक्शन फाइंड करना है। सो दिस इज द थर्ड इंटरेक्शन। सो x3 इज इक्वल टू 1 divided by 20, so 70 minus y2 plus 2 z2. So here z2 and y2 and z2 के वैल्यू पुट करने के बाद 1.00125 आंसर मिला। देन y3 इज 120 मल्टीप्लाई बाय माइनस 80 माइनस 3x प्लस z2, so they gives minus 1.0015. Then z3 1 divided by 20, so 25 minus 2 x2 plus 3 multiplied by y2, so they gives 25 minus 2 multiplied by x2, that is 1.02, और y2 क्या है माइनस 0.965। तो इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे 25 माइनस 2.04 माइनस 2.8, सो दे गिव्स 1.00335। तो हमको x की वैल्यू मीन्स क्या मिले 1, देन y इज -1 एंड z इज 1। So the after 3 iteration we find x is equal to 1, y is equal to -1 and z is equal to 1 approximately, क्योंकि 1.z3 मीन्स z3 क्या आया 1.00 मीन्स नियरली वो 1 ही है। सो z इज 1 और y3 क्या आया -1.00 मीन्स वो नियरली -1 ही है। देन x क्या आया x ऑल्सो 1.00125, सो वो नियरली 0 है, इसलिए वो अप्रोक्सीमेट x इज 1, y इज -1 एंड z इज 1। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एक एग्जांपल आपको सॉल्व करने के बाद आप आराम से 5-6 सम सॉल्व कर सकते हो। तो ये बाकी का सब आप होमवर्क के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। सिर्फ फर्स्ट जो हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है डायगोनल का यूज़ करके हम ऐसे ये टर्म में लिखेंगे। देन हमको इनिशियल जो अप्रोक्सीमेशन है y0 y1 और z x0 y0 एंड z0 दैट इज 0, तो वो हम पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमको x1 y1 एंड z1 मिलेगा। तो वो x1 y1 एंड z1 हम इधर पुट करेंगे तो हमको x2 y2 मीन्स x1 y1 z1 इधर पुट करने के बाद हमको x2 y2 और z2 मिलेगा। देन हमको अगर थर्ड इंटरेक्शन पूछा तो हम x2 y2 और z2 का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमको x3 y3 और z3 मिलेगा। तो हमको x y और z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट द नेक्स्ट सम। सो शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जैकोबिक मेथड। तो इधर हमको जैकोबिक मेथड यूज़ करना है। सो थर्ड इंटरेक्शन ओनली। सो इधर भी हमको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इंटरेक्शन फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी रीराइट इन दिस वे, जो हमको फॉर्मूला है हमारे पास। सो ये डायगोनल हो गया x देन y और ये z। सो 1/10 1/10 और 1/10। सो ये दो टर्म उधर जाके माइनस होगा मीन्स 30 माइनस y माइनस z। सो ये और ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा मीन्स 14 माइनस 3x माइनस z। देन दिस टू टर्म कम्स अपोजिट साइड, सो दे गिव माइनस। तो हमको ये वैल्यू मिलेगी दैट इज x इज इक्वल टू 1/10 और दिस, y इज इक्वल टू 1/10 और दिस, और z इज इक्वल टू 1/10 और दिस। सो नाउ फर्स्ट इंटरेक्शन। सो अप्लाइंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दैट इज x0 y0 एंड z0 इज इक्वल टू 0। सो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी मीन्स
13 divided by 10 and 14 divided by 10 and 15 divided by 10 means 1.3, 1.4 and 1.5. So x1 is 1.3, y1 is 1.4 and z1 is 1.5. सो अभी हमको सेकेंड इंटरेक्शन फाइंड करना है. सो x1, y1 एंड z1 हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 में. तो हमको क्या मिलेगा, z2, x2, y2 एंड z2. सो इधर हम क्या करेंगे, y2 z2, x2 z2 एंड x2 y2 हो जाएगा. सो x2 क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 10, 13 माइनस y1 माइनस 2 y2. सो उसकी वैल्यू पुट करने के बाद 0.86. देन y2 क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई हियर 40 माइनस 3x1 z1. सो 1.3 and 1.5 that is x1 and z1. So they give 0.86. Here also 0.86. Here also 0.86. Now z1 is equal to 1 by 10, 15 minus 2 x1 and z1. So we put x1 and z1 here. So they use 0.82. So they use 0.82. Now भी हमारे पास x y z1 z2 y2 and x2 है. तो वो हम थर्ड इंटरेक्शन, हमको थर्ड इंटरेक्शन फाइंड करना है. तो थर्ड इंटरेक्शन कैसे होगा, x2 y2 एंड z2 का वैल्यू यूज़ करके हम x3 फाइंड कर सकते हैं. तो सेम 1.10 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस y2 z2. तो वो क्या मिलेगा हमको 1.05. तो 1.0 आ गया मीन्स वो नियरली 1 है. नाउ y3 इज इक्वल टू 1 बाई 10, 14 माइनस 3 y2 z2. तो y2 z2 हम इधर से वो ले सकते हैं. तो वो मिला हमको 1.06. सो नियरली 1 ईयर. नाउ z3 1 डिवाइडेड बाई 10, 15 minus 2x2 minus 3y2. So they use 1.07. So here these also nearly 1. So the after 3 interaction we find x1 is equal to 1, y1 is equal to 1 and z1 is equal to 1. That is the approximate values. So इस तरीके से हम x1, y1 and z1 फाइंड कर सकते हैं. So हमने लास्ट लेक्चर में इजीस्ट वन मेथड देखी थी, बट ये मेथड तो उससे भी ईजी है. सिर्फ एक फार्मूला पुट करना है, बाद में हम x1 x2 का वैल्यू x0 में पुट करेंगे, देन x2 का वैल्यू 0 में पुट करेंगे तो हम x3 का वैल्यू मिल जाएगा. मीन्स वो हम x, y और z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये हो गई हमारी जैकोबियन मेथड. तो हियर ऑल्सो थर्ड इंटरेक्शन मीन्स फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड इंटरेक्शन तक फाइंड करना है. तो ये आप होमवर्क में ले लो. सो होमवर्क में भी आप 2-3 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो फर्स्ट हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमको डायगोनल चाहिए हम, इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे. तो हमको आराम से डायगोनल लिखेंगे. सो राइटिंग द x, y एंड z. सो x इज इक्वल टू 1 बाई 20. तो ये दो टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 70 माइनस y प्लस 20z. देन ये डायगोनल है, तो ये दो टर्म मीन्स कौन सी, these and these two terms from opposite side. So minus 18 minus 3x plus z. So ये डायगोनल है, मीन्स ये दो टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 25 माइनस 2x प्लस 3z. तो फर्स्ट इंटरेक्शन में हमको मालूम है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 y0 और z0 वो 0 है. तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. सो 70 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 20 एंड 25 डिवाइडेड बाई 20. सो देखिए 0.85 माइनस 0.9 एंड 1.25. तो ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन. नाउ सेकेंड इंटरेक्शन क्या करेंगे, सेकेंड इंटरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हियर वी यूजिंग द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड z1. सो x2 का है 1 डिवाइडेड बाई 20, 70 माइनस y1 एंड z1. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड z1. सो दे गिव्स 1.02. नाउ y2 सेम 1 divided by 20. So minus 18 minus 3 multiplied by x1 plus z1. So we put the value of x1 and z1. So they give 0.85 plus 1.25. So they give minus 0.965. Now z2 के लिए सेम x1 and
y1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिला 1.03. नाउ फाइंड थर्ड इंटरेक्शन. सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ x2 y2 एंड z3. सो इधर हम x2 एंड z3 वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिला 1.0025. देन इधर x2 एंड y2 की वैल्यू पुट करने के बाद -0.0015 एंड हियर x2 एंड y2 की वैल्यू पुट करने के बाद 1.00325 मिला. So this is the after third iteration approximate solution is x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this. Means x is equal to 1.0025, then y is a minus 1.015 and z is a 1.00325. So means x is equal to 1, y is equal to -1 and z is equal to 1. So इस तरीके से हम इजीली x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो ये तो फुल आपके लिए होमवर्क के लिए, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि ये कैसे करना है. और इसमें सिर्फ ओनली 2 इंटरेक्शन फाइंड करना है, मीन्स थर्ड इंटरेक्शन नहीं. तो फर्स्ट ऐसे लिखने के बाद हमको डायगोनल लेंगे. सो डायगोनल क्या आएगा, हियर 1/5 आएगा, 1/5 आएगा और y की जगह 1/4 और z इज इक्वल टू 1/5 आएगा. देन ये 2 टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी. देन x एंड z माइनस हो जाएगी. देन दिस 2 टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी. ओके, सो ये हम रीराइट द इक्वेशन यहाँ डायगोनल फॉर्म. सो ये डायगोनल फॉर्म में इक्वेशन लिखने के बाद फर्स्ट इंटरेक्शन क्या आएगा कि x0 y0 एंड z0 0. सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 4 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा. तो ये 0 होने के बाद ये सब 0 हो जाएगा. तो आंसर क्या मिलेगा 2.4, 3.75 एंड 4. सो x1 y1 एंड z1. नाउ सिर्फ हमको सेकेंड इंटरेक्शन फाइंड करना है. ओनली सेकेंड इंटरेक्शन तक ही बोला है, तो हम सेकेंड इंटरेक्शन फाइंड करेंगे. सो टेक x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 एंड z इज इक्वल टू z1. तो इधर हम क्या करेंगे y1 z1 x1 z1 x1 एंड y1 पुट करेंगे. सो x2 की वैल्यू आई 12 minus 2y1 z1, so they give 0.1. then here y2 की वैल्यू x1 and z1. so हम x1 ये x1 y1 and z1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमको y2 मिला 1.15 और z2 इज इक्वल टू 20 minus x1 minus 2y, so they give 2.02. the after 2 iteration the solution of the given set of equation is x is equal to 0.1 and y is equal to 1.50 and z is equal to 2.02. सो इस तरीके से हम x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो अनदर एक मेथड हमारी कंप्लीट हो गई. तो नेक्स्ट लेक्चर में अनदर एक मेथड देखेंगे. सो वी आर स्टॉप हियर.